Good morning, everybody. I would like to welcome you in this lecture of Engineering Graphics and CAD. Yesterday itself, based on the concepts, you have solved the ISC, and I am very much happy that except a few performances, remaining all students have scored very nicely in this particular examination. So my impression is you are doing the study and you are understanding the things. So we have started yesterday type 2 problem of the two-stage in projection of plane, and today we are going to continue it. Take the problem. Triangle ABC, triangle ABC has 30 mm base, 30 mm base, is in HP, is in HP, is in HP. Its altitude is, its altitude is 60 mm. Its altitude is 60 mm. Its altitude is 60 mm. Is perpendicular to, is perpendicular to VP and inclined to HP, and inclined to HP in such a way that, its top view, is an equilateral triangle, is an equilateral triangle. Complete the projection, complete the projection and measure its inclination with HP, its inclination with HP, its inclination with HP. First of all, our usual practice is to write the given things. Okay. So in the given things, they have provided us the information that there is a triangle ABC, and this triangle has a base of 30 mm,
एंड दिस बेस इज इन एचपी, यानी कि प्लेन आपका जो है वो एचपी में रखा है। और अगर प्लेन एचपी में रखा होगा तो हमें ये जो डायग्राम है वो कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? बिलो एक्सवाई लाइन। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमें ये जो डायग्राम है वो बिलो एक्स वाई स्टार्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ एन प्रोजेक्टर एंड ऑन दैट प्रोजेक्टर आई विल मार्क 30 mm। कितना मार्क करना है यहां? 30 mm मार्क करना। ओके, 30 mm मुझे क्या करना है? यह मार्क करना है। एंड इमीडिएटली आई विल हैव टू प्रोवाइड द नेम A and B। Excuse me, A and B। Next thing is I will have to immediately provide the dimensions। This is the base of the triangle and it is 30 mm. So I will have to write 30 over here in this way। Okay, now we are interested to complete this particular triangle, and they have not told that it is equilateral, it is right angle or what. Okay, but we will have to understand that it has the altitude. Altitude means its height। Okay, so what you will have to do, you will have to find the center point। Center point means यहाँ A से 15 mm नीचे आप आइए और यहां से एक फेंट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, and that line must be of 60 mm। This height is 60 mm। Now this particular point at 60 mm is the apex point of your triangle, so you need to join the two base points to this apex point। In this way, and this is my point C। It means here top view is completed, in which I get the true shape। Now I need to complete the front view। फ्रंट व्यू आएगा एक लाइन, and I will have to name it। This first point is A dash and B dash, and this end point is C dash।
This is my front view. Okay. Now, my friends, in second stage, they have provided me information that top view must be an equilateral triangle. Now, my friends, please tell me equilateral triangle की प्रॉपर्टी क्या होती है? All sides are equal. All sides are equal. Okay. अगर आपने पहला ट्रायंगल देखा तो आपको यह पता चलेगा कि दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. यहां ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, बेस 30 mm है और हाइट 60 होने की वजह से AC and BC are same, but this AC and BC is not equal to AB. अगर मुझे इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ a projector, separate projector. Okay, and on that particular projector we have extended the locus of this particular point A and point B. Here I will put the name A dash and B dash. ओके, तो यहां मेरा A पॉइंट आ गया, यहां मेरा B पॉइंट आ गया. अब मुझे आपसे यह सवाल करना है कि यहां टॉप व्यू में, यहां टॉप व्यू में इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखता है. अब AB लाइन जो है वो तो मेरी बेस है 30 mm की, तो अब मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलता है. इसका मीनिंग है कि यहां AC और BC इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? यहां मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलने के लिए 30 mm. यहां आपका C आएगा. तो इफ द बेस इज रिमेन अनचेंज्ड, हमने अब तक देखा है कि जो साइड हम HP में या VP में रखते हैं वो साइड चेंज नहीं होती है. सो दिस 30 विल कम एज इट इज. तो अगर एक साइड आपकी ट्रायंगल की 30 आई है तो उसे इक्विलैटरल बनाने के लिए, उसे समभुज त्रिकोण बनाने के लिए हमें रिमेनिंग जो दो साइड्स हैं वो भी कितने लेने चाहिए? 30-30 लेने चाहिए. ओके, सो व्हाट वी विल डू इज we will take A to B distance in a compass, and by keeping over here we will mark a curve. Same distance you need to maintain in a compass and mark another curve and join these all sides of A to B and B to C and A to C.
name this particular point as point C. Now all sides are of 30 mm. और आप देख सकते हैं कि इसकी जो अल्टीट्यूड है, उसका जो हाइट है वो रिड्यूस हो गया है, यानी कि एपरेंट ट्रायंगल हमें यहां दिखता है व्हेन इट इज इंक्लाइंड टू HP. Now our second task is we need to find out the inclination with HP. So मैंने क्या कर दिया, मैंने जो C का पॉइंट है वो C का पॉइंट मुझे क्या करना है, ऊपर लेना है. I'll take it in upward direction. This is the projector of C. और इस लाइन पे मुझे C' मिलने वाला है. और C' मुझे कैसे मिलने वाला है, I need to take the distance of this 60 mm A' B' to C' in a compass, and I need to mark over here. And where it cuts this projector of C, I will join it. मैं क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा. And this will be my point C'. ये जो है ये मेरा पॉइंट C' हो गया. एंड मैंने कहा था कि इंक्लिनेशन विथ HP दैट इज थीटा इज ऑलवेज अबव XY लाइन. थीटा क्या होता है, ऑलवेज XY लाइन के ऊपर होता है. सो हियर you can see there is a theta. ओके, और ये जो थीटा है वो आपको मेजर करना है और यहां लिखना है इंक्लिनेशन विथ HP इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 65. 65 degree. Okay. 65. Yeah, absolutely correct. It is 65 degrees. Have you drawn, everybody? आपने ड्रॉ कर दिया है? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. I'll provide you 2 minutes. Complete it. Very easy kind of the problem, second stage also. In the second stage, they are not going to provide you the inclination with HP और VP. वो आपको इंक्लिनेशन विथ HP और VP नहीं देंगे. ओके, वो आपको फाइनल जो फिगर है, फाइनल जो फिगर का शेप है वो देंगे और उससे हमें इंक्लिनेशन विथ HP VP ड्रॉ करना है. और ये जो डिस्टेंस होगा, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है या जिन्होंने समझा नहीं है उनके लिए ये भी 60 होगा, बिकॉज दिस A' B' टू C' डिस्टेंस इज 60. सेम लाइन वी हैव ड्रॉन हियर, लेकिन C का प्रोजेक्टर यहाँ है तो हम C पे वो डाल देते हैं. ओके, हैव यू कंप्लीटेड? कैन वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम? Yes, sir. Yeah. Now we will go to the circle problem. It is quite interesting. Take the problem. A circle of mm radius, a circle of 30 mm radius
is lying in VP, lying in VP on one of its points, one of its points on circumference in VP. In VP. It's a front view. Its front view is observed. Its front view is observed as an ellipse, with minor axis, of 30 mm, Complete the projection and find out its inclination with VP. Its inclination with VP. Its inclination with VP. Its inclination with VP. So first of all, XY line we need to draw. We need to draw an XY line. Okay, now first of all, draw the circle of 30 mm radius. क्या करना है आपको? एक 30 mm रेडियस का सर्कल यहां पे ड्रॉ करना है. इन दिस वे. उसकी सिर्फ आउटर एज जो है वो आउटर एज दिखनी चाहिए.
you need to set a center point. ओके, नाउ जब सर्कल आता है तो काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है. You need to divide this particular circle into 8 equal parts. And how to divide it in 8 equal parts? You need to see here. First of all, उसमें से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए सेंटर में से पास होती हुई. फेंट लाइन आनी चाहिए, ये सिर्फ सर्कल डार्क दिखना चाहिए. देन यू नीड टू कट इट हॉरिजॉन्टली. अब मुझे बताइए कितने पार्ट हो गए हैं सर्कल के? 4. यस. 4. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहां से 45 डिग्री पे, इस हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड से 45 डिग्री पे ऊपर और नीचे आपको मार्क बनाने हैं. एंड यू नीड टू कट दिस सर्कल दिस पर्टिकुलर वे. ये हो गए 8 पार्ट्स. हम सेंटर को नाम दे देंगे M डैश, और यहां के हर एक पॉइंट को हम नाम दे देंगे A डैश, B डैश, C डैश, D डैश, E डैश, F डैश, G डैश एंड H डैश. ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, ये हो गया मेरा फ्रंट व्यू पॉइंट कंप्लीट. और देखिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं है, ये आपको चेक करना है. 30 mm रेडियस सर्कल इज लाइंग ऑन अ पॉइंट ऑन सर्कम्फरेंस इन VP. VP में है तो मुझे XY लाइन के ऊपर स्टार्ट करना है. और आप देख सकते हैं कि यहां उसका जो एक पॉइंट है वो पॉइंट क्या हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है या नहीं हो गया है. देखिए ये A पॉइंट परपेंडिकुलर हो गया है, नहीं हो गया है? यस सर. तो मेरी जो कंडीशन थी कि जो पार्ट VP में या HP में है वो XY लाइन पे आना चाहिए. तो देखिए ये पॉइंट जो है वो XY लाइन को परपेंडिकुलर आता है. सिमिलरली H and B पॉइंट will come on one projector. ये देखिए एक ही प्रोजेक्टर पे ये 2 पॉइंट आते हैं. यहां 3 पॉइंट एक प्रोजेक्टर पे आते हैं. यहां भी 2 पॉइंट आपको प्रोजेक्टर पे दिखेंगे.
और यहाँ ई पॉइंट आपका प्रोजेक्टर पे आ जाएगा। नाउ यू नीड टू मेक दिस मच लाइन डार्क, ए पॉइंट से लेके यहां ई पॉइंट तक आपको ये डार्क करना है और यहां नेम देने हैं। फर्स्ट नेम विल बी ए डैश, सेकंड नेम विल बी बी डैश एंड एच डैश। यहां 3 नाम आएंगे, जी डैश, यम डैश और सी डैश। यहां 2 नाम आएंगे, कौन से आएंगे, एफ डैश एंड डी डैश। और यहां होगा मेरा ई डैश। एक काम रह गया है, कौन सा काम रह गया है, इसका डायमेंशन रह गया है। तो सर्कल का डायमेंशन कैसे देते हैं, सर्कल का डायमेंशन ऐसे देते हैं, यहां से यहां तक एरो, फिर इस एरो को मैच करने वाला एरो, और इस एरो को हम ऐसे बाहर ले जाएंगे और यहां लिख देंगे R30। सर्कल का जो डायमेंशन होता है वो ऐसे देते हैं। R30। अब उन्होंने कहा है कि सर्कल ऐसे इंक्लाइंड है कि उसका जो फ्रंट व्यू है वो एक इलिप्स दिखता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी सर्कुलर चीज आप ले सकते हैं और उस सर्कुलर चीज को थोड़ा सा इंक्लाइंड करके सामने से देख सकते हैं, तो उसका जो शेप है वो इलिप्टिकल आ जाएगा ऐसे। और आपको पता है कि अगर वो इलिप्स भी आ जाए फिर भी उसका जो एक एक्सिस रहेगा, यानी कि जो वर्टिकल एक्सिस रहेगा, ये जो वर्टिकल एक्सिस रहेगा वो उतना ही रहेगा। यानी कि एक जो एक्सिस है वो 60 mm का ही रहेगा। तो रह गई बात दूसरे एक्सिस की, तो दूसरा एक्सिस जो है वो हमें कितना करके लेना है, 30 mm करके लेना है, क्योंकि उसमें हमें इलिप्स फिट करना है। ओके, तो जो मेजर एक्सिस है वो उसके डायमीटर इतना ही रहेगा, लेकिन जो माइनर एक्सिस है वो माइनर एक्सिस अब चेंज होगा। और ये जो डायग्राम है इलिप्स की वो हमें यहां बनानी है, तो वो कैसे आएगी। सो लेट अस सेट द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर एंड दैट पॉइंट विल बी योर पॉइंट ए डैश। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट होगा आपका ए डैश। सर टॉप में ए बी जी, हाँ, टॉप में कैसे ए डैश बी डैश। अरे लुक टुवर्ड्स फिगर फर्स्ट, दिस इज ए डैश पॉइंट। ओके, नाउ आपको क्या करना है कि जो आपका माइनर एक्सिस है वो 30 mm का है, तो इस ए डैश पॉइंट से आपको लेना है 30 mm डिस्टेंस। यहां आ गया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ड्रॉ अ प्रोजेक्टर थ्रू इट। इलिप्स डायरेक्ट बनाना नहीं आता है, इसलिए आपको ये एंगल जो है वो पहले मार्क करके लेना पड़ता है। You need to understand this. And this distance
from this point A to this point, end point, it must be 30 mm. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 30 mm है। माइनर एक्सिस। तो अगर ये माइनर एक्सिस है A टू E, तो अगर ये A डैश पॉइंट होगा तो ये जो प्रोजेक्टर है वो प्रोजेक्टर होगा E डैश का। तो हमें अब क्या करना है, A टू E इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है और A पे रख के यहां कट करना है। मुझे क्या करना है, A टू E इतना डिस्टेंस कंपास में लेना है और यहां रख के कट कर देना है। दिस विल बी माय पॉइंट E डैश। और अब स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या करना है, ये जो डिस्टेंसेस हैं वो मार्क करने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले F डैश D डैश का डिस्टेंस ले लीजिए, ये मार्क कर दीजिए, फिर सेंटर तक का डिस्टेंस ले लीजिए। और आप ये बात आप समझ जाइए कि जितने डिस्टेंस पे B डैश H डैश है उतने ही डिस्टेंस पे E से लेके F डैश D डैश होगा। तो बहुत बार ये डिफिकल्टी आती है कि ये इतना जो छोटा डिस्टेंस है A B डैश H डैश में का या ये E F डैश D डैश में का, वो कैसा मार्क करना है, वो आप आपके स्केल पे मेजर करके भी इधर मार्क कर सकते हो, या आपको क्या करना है, A टू F डैश D डैश डिस्टेंस लेना है और वही डिस्टेंस E से इस साइड पे मार्क करना है। यानी कि A टू दिस डिस्टेंस you will have to mark from E and that distance will come over here somewhere. Now take the distance of A dash and G dash, M dash, C dash, and that distance you need to mark at the center. And you will have to give the name. इस पॉइंट को नाम आएगा B dash, H dash. इस सेंटर के पॉइंट को नाम आएगा M dash, G dash, C dash. और इस पॉइंट को नाम आएगा F डैश, कॉमा D डैश। यानी कि ये जो लाइन है A टू E, ये लाइन मैंने यहां सेट कर दी है A टू E। ओके, और A टू E का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 30 mm। यानी कि मेरा माइनर एक्सिस जो है A टू E ये 30 mm हो गया। मेजर एक्सिस एज इट इज, इट विल बी देयर। नाउ you need to take the projector of A to E in upward direction. ये मैंने A का प्रोजेक्टर ले लिया, ये B और H का प्रोजेक्टर ले लिया, ये C, G डैश, M डैश का प्रोजेक्टर ले लिया, ये मैंने F और D का प्रोजेक्टर ले लिया, और ये मैंने E का प्रोजेक्टर ऊपर ले लिया। ऐसे प्रोजेक्टर आपके आएंगे। अब देखिए आपका जो माइनर एक्सिस यहां आएगा वो 30 mm का हो जाएगा और मेजर एक्सिस जो है वो एज इट इज रहेगा। नाउ ट्रांसफर द लोकस। ये H डैश और F डैश का एक ही लोकस आएगा, A डैश और E डैश का एक ही लोकस आएगा, B डैश और D डैश का एक ही लोकस आएगा, और यहां C डैश का एक ही लोकस आएगा।
ये ऐसा एक नेट वहां प्रिपेयर होगा, लोकस और प्रोजेक्टर से वहां क्या हो गया, एक नेट यहां सेट हो गया। तो आपको अब क्या करना है, आपको अब ये पॉइंट सेट करने हैं। यहां ए का प्रोजेक्टर, ए का लोकस, ये हो गया पॉइंट ए डैश। यहां देखिए ये पॉइंट बहुत बारीकाई से आपको बारीक नजर से सेट करने पड़ते हैं, अदरवाइज योर फिगर में गो रॉन्ग। अब क्या होगा, बी डैश एच डैश का प्रोजेक्टर और बी डैश और एच डैश के यहां लोकस हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हो गया मेरा बी डैश पॉइंट, ये हो गया मेरा एच डैश पॉइंट। नाउ यहां सी का प्रोजेक्टर, सी का लोकस, यहां डी का प्रोजेक्टर, डी का लोकस, ई का प्रोजेक्टर, ई का लोकस, ये ई पॉइंट सेट हो गया। यहां उसके अंदर डी का एफ का पॉइंट, एफ का प्रोजेक्टर और एफ का लोकस, और ऊपर का एक्सट्रीम पॉइंट जी का प्रोजेक्टर और जी का लोकस। ये ऐसे मुझे 8 पॉइंट यहां मिल जाते हैं। ये सेंटर का पॉइंट यम डैश। अब मैं इसे नेम दे देता हूं बी डैश, ये हो गया मेरा सी डैश, ये हो गया मेरा डी डैश, ये हो गया मेरा ई डैश, ये हो गया मेरा एफ डैश, ये हो गया मेरा जी डैश, ये हो गया मेरा एच डैश, एंड सेंटर पॉइंट इज ऑफ एम डैश। ओके, अब आपको क्या करना है कि इन सारे 8 पॉइंट को जो सरकमफेरेंस पे है उनको जोड़ना है। और वो कैसे जोड़ना है, सर्कल के बारे में एक बात मैं आपको बताता हूं कि कोई भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना है, पेंसिल लेके फ्री हैंड से ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको ज्वाइन करने हैं। यानी कि ये देखिए ए से बी तक, सॉरी ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, और एच से ए। तो ये ऐसा आपका इलिप्स यहां बन जाएगा। फ्री हैंड से करो आपको जोड़ना। और अब आप देख सकते हैं कि इसका जो एक मेजर एक्सिस है वो 60 mm का ही रहेगा। ये जो वर्टिकल लाइन G to C है ये 60 mm की रहेगी क्योंकि इसका रेडियस 30 mm है। और इसका जो माइनर एक्सिस है वो माइनर एक्सिस 30 mm का हो जाएगा। एंड देन you will have to measure this angle inclination with VP, which is nothing but phi angle. Okay, so this is the solution. सर्कल मैंने थोड़ा देर से लिया है क्योंकि सर्कल ड्रॉ करने के लिए प्रॉपर प्रोजेक्टर और लोकस ड्रॉ करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
और ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो आपको फ्री हैंड से जोड़ने हैं। आप वो कंपास का यूज करके नहीं जोड़ सकते हैं, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज द सेंटर ऑफ दोज पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स। इजी है। और आप देख सकते हैं कि यहां फ्रंट व्यू में आपको क्या मिल गया है, इलिप्स मिल गया है, जिसका मेजर एक्सिस 60 mm है एंड माइनर एक्सिस 30 mm है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ओके। और जिन्होंने मुझे डाउट पूछा था कि सर A' पॉइंट आपने पहले क्यों ले लिया, तो उनका भी डाउट क्लियर हुआ होगा कि पहले यहां मुझे 30 mm पे 2 प्रोजेक्टर ड्रॉ करके उसमें ये सारे जो 9 पॉइंट्स हैं उन्हें सेट करना पड़ता है, और फिर मैं ये जो उसका फ्रंट व्यू में जो एपरेंट शेप है इलिप्स का वो निकाल सकता हूं। ओके। यहां पहले प्रॉब्लम जैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग है। ओके। पहले हम क्या करते थे कि ये ऊपर का व्यू ड्रॉ करके लेते थे और उसके अनुसार नीचे का एंगल एडजस्ट करते थे, लेकिन सर्कल के इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता है। सो यू कैन मेक 2 स्टार टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड आई रिक्वेस्ट यू दैट यू नीड टू प्रैक्टिस इट इन द होम। ओके। आपको घर में इस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये सर्कल का प्रॉब्लम है